guys, welcome back to my channel. Today I want to discuss something before we understand the second part of order dynamics. So, if you want to become a trader, there is something I want you to understand before you even think about making money in this market. Your first day as a trader should not be about finding the perfect strategy. It should not be about making your first profit, and it definitely should not be about trying to predict every move on the market. Think about it like learning a bike, bike riding, right? When you first learn how to ride a bike, what you did? Did you sit on the bike on day one and say, आज भैया हम 20 किलोमीटर चलाएंगे. Today I'm going to ride 20 kilometers. First, no, right? First, you have to understand how to balance yourself, basically, right? Then you learn how the controls and handle the bike. You learn how to use the brakes, how to speed up. You fall a few times, and slowly your brain starts to understand how the bike behaves, connect every dot, and start realizing that this is how a bike should be working, and you ride as per, right? Trading is exactly the same, but unfortunately, most new traders or beginners do the opposite. They open the chart on day one and immediately start looking for entries. And if that does not happen, what they start looking for? A strategy or some kind of indicator, right? A magic potion, anything like that. And after taking a few trades, they start asking why I am losing, right? The problem is not always the strategy. Sometimes the problem is you. You are trying to ride that bike before learning how the bike works, right? So if I could go back to to day one of my trading journey, I wouldn't tell myself to make money. Uh, it's actually true that I started my journey not the way I am telling you. I also started, let's go sit on the bike and आज हम 20 किलोमीटर चलाएंगे. I was the same person जो आप हैं. आप भी जो सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच के मार्केट पे ट्रेड करता था कि भैया आज तो पैसे बनाना है. Frankly, I learned my mistake and I restart my journey uh, after realizing my mistakes. So I would tell myself, please understand the market first, especially that we will see today कि हमने from day one से क्या करना है. Understand why price moves, वो भी मैं बताऊंगा. Understand buyers and sellers. Understand orders. ठीक है, ऑर्डर्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आप चार्ट पे भी देख के बता पाएंगे. Because when you open a chart, that candle you are looking at is simply the result of everything happening or happened underneath it, right? And that exactly where we are going today. In the previous video we started understanding order dynamics, what is actually happening behind this order dynamics, whatever words I'm explaining here. What is the concept? I explained three different parts of an order dynamics. उनके प्रॉपर्टीज बताऊंगा और हाउ दे बिहेव. उनके बिहेवियर पे बेस्ड करके हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कहाँ बायस हो सकते हैं, सब कुछ आज हम लोग पार्ट टू में देखेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट व्हाट्स हैपन विथ ऑर्डर्स टू व्हाट वी एक्चुअली सी ऑन आवर चार्ट. ठीक है, हम लोग थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट बिहेव कर रही है. मैंने थोड़ा सा आपको ट्रेड भी दिखाया था कि हाउ मार्केट केम बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे बायर्स सेलर्स का क्या लॉजिक है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट दिस वे, a candle stop being just a green red box or red box, green box, right? These are different things. These are not just candles for me. Okay? You will start asking who is buying here, right? Like this, on this downtrend, who is buying here? किसको इतना कॉन्फिडेंट है मार्केट ऊपर खुलवाने का? मार्केट मेकर्स, राइट?
हाउ कैन दे बी सो कॉन्फिडेंट कि उनको यहाँ बाई करने में इतनी इतनी कॉन्फिडेंस जो हमें नहीं है. व्हाट्स द डिफरेंस? उनके पास एक ब्रेन है, दो आँख है, एक नाक है, दो कान है, एक मुंह है, राइट? एंड व्हाट हैपेंड हियर? व्हाई डिड इट स्टॉप? ये सारी बातें हमको धीरे धीरे सीखनी है. डोंट रश टू मेक मनी. फर्स्ट लर्न टू राइड द बाइक. Learn the balance, learn the controls, understand how a bike moves. Then, once you can control it, you can do whatever you want to do with it, right? You can start thinking about how far you want to ride on your bike, right? So, let's start with what I believe every trader should do from day one, right? Don't worry, I'm not going to read all those things. I'm just trying to explain this portion only. Okay, this checkbox list. These are the main things. I will provide the link of this notion uh, in the description box, right? And then we will continue with part 2 of understanding order dynamics. ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस चीज से थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं. बिकॉज इवन इफ यू हैव बीन ट्रेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, लेट मी कंसिडर कि आप अब ये 2 दिन थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके सोमवार से एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए with all these rules, so that आप भी एक अपनी जैसा चाहते हैं वैसा ट्रेडर आप बन सकें. ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट. मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे किसी स्ट्रेटेजी पे बेस्ड करके प्रॉफिटेबल बने. नो नो नो, आई डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स. आई वांट कि आप अपने दम पे अपनी जैसा आप जैसा चाहते हैं वैसा ट्रेडर आप बन पाएं. ठीक है. सो फ्रॉम डे वन आपको पैसे के बारे में सोचना भी नहीं है. और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे जो भी मैं कहूँगा उसमें ज़्यादातर चीज़ नॉट हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क, हाउ योर ब्रेन वर्क, हाउ यू वर्क, हाउ मतलब मैं जो भी मैं यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, दोज आर फॉर यू. ठीक है, दोज आर फॉर यू. तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा. सो पहला जो चेक बॉक्स है, दैट इज फ्रॉम डे वन लर्न हाउ द मार्केट एक्चुअली मूव्स. ठीक है, व्हाट इज अ कैंडल, कैंडल्स क्या हैं. ठीक है, हाउ डज द प्राइस मूव्स, प्राइस क्यों मूव करता है, वाई, क्यों मार्केट यहाँ पे प्राइस था क्यों नीचे आ गया, वाई. हाँ, आप बोलेंगे बायर्स वीक थे, सेलर्स स्ट्रांग थे, दैट्स वाई. क्यों, और भी 3 कारण हैं दैट आई नो, जिस वजह से प्राइस यहाँ से यहाँ आ सकता है. लिक्विडिटी सर्च वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ. द सेम लॉजिक यू आर सेइंग कि यहाँ पे बायर्स वीक थे और सेलर्स स्ट्रांग थे, जिस वजह से ये कैंडल नीचे आया है. और भी कारण है, थोड़ा सा स्टडी कीजिए. सब यहाँ पे आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा. ठीक है. और व्हाट इज़ अ ट्रेंड, मैंने एक सवाल पूछा था अपने चैनल पे, पोस्ट किया था कि व्हेन अ मार्केट इज़ ट्रेंडिंग. जिनको याद है पता चलेगा कि मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है. मैं थोड़ा पागल हूँ, बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, इसलिए उल्टा-सीधा सोचता हूँ. नो वरी. ठीक है. किस सिनेरियोज़ में मार्केट साइडवेज़ रहता है, ट्रेंडिंग नहीं बनता? ये सब सवाल आप समझ रहे हैं ना? मैंने अभी भी आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही हैं हम लोग. ठीक है. व्हाट इज़ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी? What happens when buyers or seller lose control? These are all part of learning how market actually moves. ठीक है. Different time frames का क्या connection है? What happens when market create a strong bearish candle? What happen on the same day in lower time frame? Right? ये देखना है, ये understand करना है. What is meant by fractal? मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इस भाई साहब से परिचय करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये विलियम फैक्टरल ने क्या कहा था, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टाइम फ्रेम, हाउ दोज आर कनेक्टेड. ठीक है. अब समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. फ्रॉम डे वन यू नीड टू लर्न हाउ द मार्केट एक्चुअली मूव्स. इंडिकेटर्स की वजह से मार्केट मूव नहीं करता है. 5 EMA के ऊपर मार्केट निकला तो, या फिर बॉलिंजर बैंड के ऊपर मार्केट निकला तो इट विल गो अप. नो 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 नो, ये बहुत ही गलत इंडिकेशन है इंडिकेटर्स के बारे में. these are the representation of price that already being traded or whatever orders being executed. मैं सब past tense में बोल रहा हूँ. means those things have already been done. Indicators are simply the representation of whatever already happened. ठीक है. हाँ, क्यों नहीं हो सकता कि 5 EMA के ऊपर मार्केट निकला तो भैया बुलिश हो जाएगी. इज दैट द एक्चुअल रीजन?
5 EMI इंडिकेटर्स का क्या काम होता है, ये तो भैया आज तो मैं बताने से रहा, नहीं बताने का मन है मुझे। इंडिकेटर्स वो इसलिए नहीं है जिस जिस वजह से आप इसको यूज़ करते हैं, व्हाटएवर, नो इश्यू, ठीक है? तो प्लीज़, ठीक है? द गोल इज़ टू रीड द प्राइस, नॉट द कैंडल्स। कैंडल्स को रीड करना और प्राइस रीड करना 2 डिफरेंट चीज़ है। दिस व्हाट इज़ दिस कैंडल? रेड कैंडल विथ अ विक, but what is it representing? That's what you need to ask yourself every day on every candle as a beginner. ठीक है? Now, initially, I will suggest choose one market and one style. Why? So that you're focused. You should be focused on a single market, how it's behave, whether it's volatile or not, right? So don't try to trade everything. ठीक है? सब charts देखने की जरूरत नहीं है. That's why I started with Nifty 50 only. इनफैक्ट आई माई सेल्फ स्टार्टेड विद निफ्टी 50। जब मैंने एफ एंड ओ स्टार्ट किया था ट्रेड करना, मैंने निफ्टी 50 के अलावा, हाँ नो सॉरी, झूठ बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता था, बट आई रियलाइज एंड गेट बैक टू निफ्टी 50 ओनली। बट अभी अगर मुझे किसी भी एफ एंड ओ स्टॉक या फिर इंडाइसिस पे ऑप्शन मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, बट दैट इज नॉट फॉर अ ट्रेडर हु इज ऑन स्टैंडिंग ऑन डे वन। ठीक है? सो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट उठाइए, इंडाइसेस हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। अगर आपको रात में भी प्रैक्टिस करना है, दिन में आप काम करते हैं, तो फॉरेक्स क्रिप्टो का चार्ट खोल लीजिए। प्रैक्टिस चाहिए आपको, बस आपको ट्रेड नहीं करना है वहाँ पे, देखना है, समझना है। ठीक है? फिर उसके बाद एक ट्रेडिंग स्टाइल एक्सेप्ट कीजिए कि आप स्कैल्पिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। और भी 4 प्रकार के ट्रेडिंग स्टाइल है, पर इनिशियली मैंने इन चारों का नाम लिया बिकॉज़ दे आर नोन टू यू एंड दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सिंस आप मंडे से ही अपने आप को वो समझ के उस हिसाब से ट्रेडिंग प्रैक्टिस रियल मनी ट्रेड नहीं करने बोल रहा हूँ, डे वन से कोई रियल मनी से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है? प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, नाउ द थर्ड रूल विच कैन बी, पीपल माइट से हाउ कैन अ ट्रेडर फ्रॉम डे वन कैन हैव अ सिंपल सेटअप, बट बहुत सिंपल सेटअप भी है। इनफैक्ट अगर मुझे पूछिएगा तो मार्केट में आपको, आप ढूंढेंगे तो आपको तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बट वेरी सिंपल सेटअप्स है। 15 मिनट ब्रेकआउट, 5 मिनट ब्रेकआउट, ईएमए ट्रेडिंग, ईएमए क्रॉसओवर्स, आरएसआई, ये बहुत कुछ है। ठीक है? सिंपल सेटअप। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो सब सेटअप काम नहीं करते हैं, दोज आर ओल्डर एंड ऑल, तो मैंने जो भी सेटअप बताया है उस पर भी बेस करके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट बशर्ते वो सेटअप आपको फुली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। व्हाई, लाइक मेरा जो मैंने रिसेंटली जो सेटअप बताया था फॉर कैपिटल बिल्डिंग, व्हाई दिस फेयर वैल्यू गैप्स वर्क्स व्हेन दिस इंटरमीडिएट पॉइंट्स गेट क्रिएटेड एट दिस पॉइंट, राइट? तो कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। अब जो भी सेटअप पे ट्रेड कीजिए, मेरे पे करने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। ठीक है? एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न रिस्क मैनेजमेंट बिफोर रियल ट्रेडिंग। ठीक है? ये तो ऑब्वियसली पूरा पूरा फोकस इस पे डाल दीजिए, कितना पैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिटर्न होना पड़ेगा। नॉट कि आप ट्रेड लेने के बाद ये सब ठीक करेंगे कि अरे भैया मैंने 170 पे खरीदा है, 20 पॉइंट कैसे लगता हूँ, 40 पॉइंट का टारगेट तो मिल ही जाएगा। नो, नथिंग लाइक दैट। आपका रिस्क मैनेजमेंट प्री डिफाइन होना चाहिए। ठीक है? मैक्सिमम लॉस कितना लेंगे पर डे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना करेंगे, रिस्क रिवार्ड कितना रहेगा, क्या होगा अगर मैं 2 लॉस ले लेता हूँ एक दिन में, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए, प्री डिफाइन होना चाहिए। आप मार्केट में ट्रेड लेने के बाद ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है? बैक टेस्ट द सेटअप। अब यहाँ पे एक समस्या है। बैक टेस्ट पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं, अरे ये तो रहा, गए हम लोग 1 साल बाद, अरे यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट बम करके ऊपर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। बैक टेस्टिंग इज नॉट डन लाइक दैट। बैक टेस्टिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वेदर एवरी टाइम योर सेटअप इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। सेटअप के हर एक स्टेप्स पूरी तरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है? डोंट ट्राई टू गेट एक्साइटेड अबाउट द आउटपुट ऑफ दैट बैक टेस्टिंग कि हाँ मैंने 10 बैक टेस्ट किए, 10 के 10 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल निकले।
ऐसा नहीं, आउटपुट पे ध्यान मत दीजिए। वेदर सेटअप इज बीइंग फॉलोड कंप्लीटली और नॉट। ठीक है, कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, कहाँ प्रैक्टिकली एंट्री बन सकती थी, दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन बैक टेस्टिंग। ठीक है, अब फॉरवर्ड टेस्ट तो अवश्य ज़रूरत है, बिकॉज इट विल मेक यू रियलाइज कि हाँ भैया, मेरी स्ट्रेटजी तो हिस्टोरिकली बहुत बढ़िया काम करती है, बट आई कांट एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली इन रियल टाइम। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आई एम सॉरी गाइज, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, एंड कल सैटरडे है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। जो मैंने सोचा था कि ऑर्डर डायनेमिक्स के बारे में आज ही समझाऊंगा, बट आई एम सॉरी, मैं आज प्लस 11 बजने जा रहे हैं, तो वो वाला अगर आप लोग मुझे इस बार के लिए माफ़ करें तो मैं वो वीडियो कल बनाऊंगा। ठीक है, फ्रेशली, जस्ट टू एक्सप्लेन ऑर्डर डायनेमिक्स। ठीक है, सॉरी ये बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, बट दिस इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप इतनी दूर तक देख रहे हैं, देन यू मस्ट बी अ सीरियस गाय, आई गेस। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर ये डिटर्मिनेशन रहा तो। ठीक है, फॉरवर्ड टेस्ट में आपको खुद से परिचय होगा। ठीक है, आपके सेटअप से परिचय होगा, आपका सेटअप वेदर इट्स फिट फॉर यू और नॉट। यस, सेटअप गाड़ी की तरह होता है, हर गाड़ी आपको सूट नहीं करेगी, पर कुछ गाड़ी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करती है। इफ़ यू आर 7 फुट, यू आर 7 फुट guy with a well maintained body, then Royal Enfield is good for you, right? How that funny. Okay, start a trading journal from day one, and please, again, focus what I am going to say, not just PNL. Please, everyone, focus on, don't focus on the money part, which is actually true. In trading, money is just an outcome. Okay, the process, mindset, discipline is what actually needed. ठीक है, तो आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग जर्नल में मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड आई टेक दिस ट्रेड? डिड माई सेटअप एक्चुअली अपीयर? डिड आई फॉलो माई रूल्स? डिड आई एंटर्ड अर्ली? डिड आई एग्जिट इमोशनली? डिड आई ओवरट्रेड? Every question is based on whether I did it this or that, not how the setup appeared, at what time it appeared, what kind of candle is there. I didn't journal like that. I journal about myself, not about the trade only. Okay, so you have to journal about yourself. ट्रेडिंग जर्नल में ज़्यादातर आपकी छवि होनी चाहिए। योर जर्नल शुड रिफ्लेक्ट यू, अबाउट यू, नॉट अबाउट द ट्रेड। ठीक है, सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वाई डिड आई टेक दिस ट्रेड? डिड माई सेटअप एक्चुअली अपेयर? अपेयर हुआ भी तो मुझे दिखा या नहीं दिखा? डिड आई फॉलो माई रूल्स? क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? डिड आई एंटर अर्ली और डिड आई एग्जिट इमोशनली? डिड आई ओवरट्रेड? एंड मेनी मोर, इफ यू वांट टू ऐड मोर, नो इशू। ठीक है, योर बिगेस्ट प्रॉब्लम मे नॉट बी योर स्ट्रेटजी, it may be your behavior. That's why this point is very necessary. ठीक है, okay, what separates a good trade from a profitable trade? ठीक है, a good trade and a profitable trade. Most of the retailers focused on whether my trade is profitable or not. No, I focused on whether a trade is good or bad. What's the difference? What's the difference? This is a huge point. Please be focused. ठीक है, a good trade follow every rule of my setup, but lost. I made a loss in a good trade. I might take a good trade, but it turned out to be a loss, right? And a profitable trade can be a bad trade which broke every rule but made money. Understood? समझ में आया? Good trades can be loss, but follow my setup and everything that I worked for. A profitable trade can be a
a bad trade if it broke every rule even though it's make money. इसने पैसा बनाया बट इसने सेटअप तो फॉलो नहीं किया. So this is what I am looking for. A good trade is the only way that can help you become a profitable trader in the long term. ये नहीं करेगा आपको. ठीक है. Okay, create daily rules. What I am saying, you must know which इसी बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं. दैट आप चार्ट खोलते ही क्या देखना है आपको, राइट? कौन से कंडीशंस डिसाइड करेंगे वेदर टू टेक ट्रेड और नॉट. ठीक है. कौन से कंडीशंस आपको, ये प्री डिफाइन होना चाहिए भैया. यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने, डेली रूल्स, सेटअप, या फिर आपका लर्न रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ प्री डिफाइन होना है. ठीक है. आप कब ट्रेड करना स्टॉप कर देंगे इन अ डे. ठीक. आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं, दिस शुड बी प्री डिफाइंड. ओके. ए ट्रेडर शुड नॉट बी मेकिंग अप रूल्स आफ्टर एंटरिंग अ पोजीशन. ये याद रखिए बार बार. बहुत ज़्यादातर, मैंने ज़्यादातर क्या, हर किसी को देखा है ट्रेड में एंटर करने के बाद. इनफैक्ट मैं भी शायद आपको एक्सप्लेन करते वक्त बोल देता हूँ कि यहाँ पे, बट दैट्स रॉन्ग थिंग, दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग, बट मैं बोल देता हूँ कि आपने यहाँ एंटर लिया, आपने यहाँ ऐसा रख दिया. नो, दैट्स नॉट द राइट वे. ठीक है. मैं यूजुअली, देखिएगा आप, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे ऐसा रखता हूँ. दैट्स आई एक्सप्लेन्ड इन माई सेटअप वीडियोज़ कि मैं जहाँ एंटर किया उसके नीचे देखता हूँ. अगर बुलिश सिनेरियो में है तो एंटर करने के बाद नीचे देखता हूँ इंटरमीडिएट पॉइंट या शॉर्ट टर्म पॉइंट्स कहाँ हैं. ठीक है. एज पर दैट मैं अपने एस एल सेट्स करता हूँ. रिवॉर्ड भी मैंने वैसे ही 1:2 सेट करके रखा हुआ है, या फिर फर्स्ट और द नेक्स्ट पीडीआरए दैट शुड बी एटलीस्ट 1:2 और एटलीस्ट नियर टू 1 to 2 आर समथिंग लाइक दैट. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द मार्केट. रिव्यू एवरी डे, एवरी डे. ज़्यादातर लोग, अरे भैया आज तो प्रॉफिट हो गया, आई डिड एवरीथिंग करेक्ट. इज दैट ट्रू? इसी वजह से मैंने गुड ट्रेड और प्रॉफिटेबल ट्रेड के बारे में बताया आपको. एंड 10 नंबर पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, टू बिल्ड योर सेल्फ, दैट इज रिव्यू एवरी डे, इम्प्रूव एवरी वीक, वेदर इट्स प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, और you didn't take a trade. Even though you didn't took a trade or unable to take a trade, you should journal every single day. Why? क्यों करना है? इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जिस दिन ट्रेड नहीं लेते हैं उस दिन भी आपको ज़्यादा लिखना है, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर योर माइंड एज अ रिटेलर बिगनर, यू आर लुकिंग फॉर ट्रेड्स, राइट? तो एट व्हाट कैंडल व्हाट यू आर थिंकिंग. आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इस कैंडल पे क्या सोच रहे थे, इस कैंडल पे क्या सोच रहे थे, इस कैंडल पे क्या सोच रहे थे, इस कैंडल पे क्या सोच रहे थे. दैट्स व्हाट नेसेसरी. यू नीड टू नो योरसेल्फ कि आप यहाँ क्या सोच रहे थे, इस कैंडल पे क्या सोच रहे थे. व्हाट आर यूर थिंकिंग. हो सकता है आपने 5 मिनट में जाके यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की हो, पर आपका सेटअप पूरी यूटिलाइज हुआ नहीं, तो आपने ट्रेड लिया नहीं. क्या सोच रहे थे. दैट्स वेरी नेसेसरी. ठीक है. तो भैया, ऑर्डर डायनेमिक्स कल मैं समझा दूंगा. आज के लिए इतना ही. इट्स ऑलरेडी 11, ऑलमोस्ट 11. तो कल मिलते हैं. गुड नाइट एंड टेक केयर. प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज टेक दिस आउट. ठीक है.